بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے آپ کو ایک لہک و دہک صحرا میں پایا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فلیٹ کے آرام دہ بستر سے اس صحرا کا سفر میں نے کیسے طے کیا۔ شاید یہ اسی کمبل پوش مردود کی قوتیں ہوں گی جس نے آرام سے اٹھا کر مجھے سختی میں لا پھینکا تھا۔ ہارر کہانیوں کی دنیا میں تہلکا مچاتی اور دماغ پر دہشت طاری کرتی پونچکا و بھونچکا کہانی۔ میں ہوں آصفہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ آج جب بھی میں ان روح فرسا اور لرزہ خیز واقعات کا تصور کرتا ہوں تو خوف کی ایک لہر میرے اندر دوڑ جاتی ہے۔ اوہ میرے خدایا، کس قدر بھیانک اور خوفناک واقعات تھے وہ جو کہ میری جیتی جاگتی زندگی میں پیش آئے۔ یہ سارے واقعات خوفناک اور ناقابل یقین حد تک تحیر انگیز تھے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلا قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور دنیا کا آخری قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے فساد اور جھگڑے کی ذمہ دار عورت ہی ہے۔ میری زندگی کی یہ پراسرار اور حیرت انگیز داستان جس کی بنیاد ایک عورت ہے، جس کی جفاؤں کی وجہ سے میری یہ داستان جو کہ حیرت انگیز واقعات پر مبنی ہے ظہور پذیر ہوئی۔ میرا نام امجد بیگ ہے۔ میرا تعلق ایک باعزت گھرانے سے ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اسی لیے ان کی موت کے بعد میں اکیلا پڑ گیا، لیکن میرے والدین نے مرنے سے پہلے میرے ساتھ اتنی مہربانی ضرور کی، مجھے تعلیمی حوالے سے اس قابل بنا گئے کہ میں اچھی نوکری حاصل کر سکوں۔ چنانچہ مجھے نوکری کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ نوکری فوراً ہی مل گئی اور میری انکم بھی اچھی تھی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اسی لیے میں اچھا پہنتا اور اچھا کھاتا، اپنی ساری انکم اپنے جسم اور اپنی ذات پر ہی خرچ کر دیتا تھا۔ میری داستان کی ابتدا جیمسن اینڈ بارٹلے نامی ایک فرم سے ہوئی جہاں میں ایک کلرک کی پوزیشن پر جاب کرتا تھا۔ سارا دن کمپیوٹر پہ ہی انگلیاں گھسنے کی تنخواہ مجھے ملا کرتی تھی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اسی لیے اپنی زندگی شاہانہ اور اپنی مرضی سے گزارتا تھا۔ پورا ماہ عیاشی سے خرچ کرنے کے باوجود بھی میرے پاس بہت سے پیسے بچ جاتے جن کو پس انداز کر لیا کرتا تھا۔ جس فرم میں جاب کیا کرتا تھا وہ کل 7 اسٹاف پر مشتمل تھا، مجھ سمیت 5 مرد اور 2 عورتیں۔ مردوں میں سب سے زیادہ جوان اور ہینڈسم میں ہی تھا اور خوش لباس بھی رہنا میں ہی پسند کرتا تھا۔ جب میں نے اپنی فرم جوائن کی تو سواری کے لیے اکثر بس یا مسافر رکشہ کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ بعد میں نے آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ فرم میں جو خاتون تھی ان میں سے پہلی کا نام انجیلا تھا جو کہ 40 سال کی ادھیڑ عمر کرسچن خاتون تھی۔ انجیلا کی شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انجیلا اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ آفس میں ایک بوڑھے جیکب بھی تھے جس نے انجیلا کو مذہب اور ملت کا واسطہ دے کر شادی کے لیے قائل کرنا چاہا، مگر اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بوڑھا جیکب اپنا دل اپنے تھیلے میں رکھ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری خاتون ایک لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ بہت حسین اور طرح دار تھی، لیکن نائلہ بہت زیادہ فیشنیبل اور ماڈرن تھی۔ اس کو دیکھ کر دفتر کے سارے اسٹاف نے اپنے سامان عشق کے تمام اوزار اپنے دل سے باہر نکال لیے تھے۔ ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح نائلہ کو متاثر کیا جا سکے۔ میں اس دن حسب معمول صبح کے وقت ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد بس اسٹاپ پر آ گیا تھا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ آفس ہمیشہ 10 بجے لگتا تھا، اسی لیے میں آرام سے ناشتہ کر کے صبح 8:30 بجے بس اسٹاپ پر آ جاتا اور میری کوشش ہوتی کہ میں ہمیشہ کھڑکی والی نشست کا انتخاب کروں تاکہ آرام سے بس میں سو سکوں۔
चुनाचा मैंने इस दफ़ा भी यही किया कि खिड़की वाली सीट पकड़ी और सीट की पुश्त से सर टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। जो सीट मैंने बस में पकड़ी थी वो बिल्कुल ही खाली थी, बाकी बस भी ज़्यादातर खाली थी। मुझे आंखें बंद किए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। अचानक एक अजीब नागवार किस्म की बदबू मेरे शमामा से टकराई। बदबू इंतहाई तेज़ थी, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। बदबू बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी जैसे कि कई दिन पुराना गोश्त पड़ा सड़ गया हो। मैंने इधर उधर देखा तो चौंक गया, क्योंकि मेरी साथ वाली जो सीट खाली थी, इस पर एक शख्स कंबल में लिपटा पड़ा था। इसका चेहरा भी कंबल से ढका हुआ था। तेज़ किस्म की बदबू इसके पास से मुझे आती हुई महसूस हो रही थी। बदबू इस कदर तेज़ और सरीउल असर थी कि इसको पूरी बस में फैल जाना चाहिए था, लेकिन हैरत ये थी कि बस में कोई भी इस बदबू से मुतासिर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूरी बस में नज़र दौड़ाई, मुझे कोई भी मुसाफिर परेशान नज़र नहीं आया। वो बदबू ऐसी थी कि जैसे कहीं लाश सड़ रही हो। ए भाई, कौन हो तुम? किसी दूसरी जगह जाकर बैठो, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैंने इसके कंबल को हिलाया। कंबल हिलाते ही एक नहायत ही गंदा सा एहसास मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। मैंने घबराकर हाथ खींच लिया। मेरे हिलाने पर इसने कोई हरकत नहीं की। मैंने सोचा, ना जाने कौन है, इसको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इसका जिस्म बदबूदार हो गया है। मैंने फ़ौरन ही अपनी सीट बदलने का फ़ैसला कर लिया। मैं उठकर इसके दरमियान से निकलने ही लगा था कि इसने मेरे और सीट के दरमियान अपना हाथ अड़ा दिया। मैं चौंक कर रुक गया। मैंने इसकी तरफ निहायत गुस्से से देखा। अचानक इसने अपने मैले कुचैले कंबल से मुंह बाहर निकाला। इसके चेहरे को देखकर खौफ का एक एहसास था जो कि मेरे अंदर सराहियत करता चला गया। अजीब सा मकरू और नहुसत से भरपूर चेहरा था। इसका चेहरा किसी तवे की तरह स्याह था। सर के सारे बाल स्याह घुंघरियाले थे और आंखें छोटी छोटी और होंठ मोटे और हबशियों की तरह थे। इसकी छोटी छोटी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक फैली हुई थी। मुझे वो आंखें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थीं। न जाने क्यों इसका चेहरा देखकर मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये किसी जिंदा इंसान का चेहरा ना हो। अजीब बेरौनकी और नहुसत थी इस चेहरे पर। कौन हो तुम? मैंने सख्त लहजे में पूछा। अपने लहजे का खोखलापन मुझे साफ महसूस हुआ। ना जाने क्यों मुझे अपने अंदर कपकपी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। खौफ का एहसास मैंने अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस किया। वो मुझे मुज़ैक़ा ख़ेज़ नज़रों से घूर रहा था। दफ़तन वो मुझे देखकर कहका लगाकर हंस पड़ा। इस तरह के इसके घूरने पर मुझे 100% यकीन हो गया कि वो पागल है। मैंने जाने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन शायद इसमें मुझसे ज़्यादा दम था। मेरे ज़ोर लगाने पर वो टस से मस ना हुआ, बल्कि और दीदे पटपटाकर मुझे घूरने लगा। हटो इधर से, ना जाने कैसे पागल चढ़ा रखे हैं, मैंने चिल्ला कर कहा। मुझे इस तरह चिल्लाता देखकर अगली सीट के सारे मुसाफिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहे हो? मुझसे आगे वाली सीट के एक बड़े मियाँ ने मेरी तरफ पलट कर देखा। न जाने कैसे कैसे गंदे लोग चढ़ जाते हैं बस में। मैंने बड़े मियाँ की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, कौन से गंदे लोग, कहाँ हैं? बड़े मियाँ ने मुझे देखकर हैरानगी से कहा, यहाँ। मैंने अपनी सीट की तरफ इशारा किया, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई न था। वो गंदा और मकरू इंसान गायब हो चुका था। मैं हैरान हो गया। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। वो मकरू गंदा इंसान कौन था? क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ था? सारे लोग अब मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। इसी इसना में मेरा बस स्टॉप आ गया। मैं फ़ौरन ही बस से उतर गया। मेरा जहन मुस्तकिल यही सोच रहा था कि वो पुरइसरार और बदबूदार इंसान कौन था, मुझसे क्या चाहता था। यही सारे सवालात मेरे जहन में घूम रहे थे। इसी दौरान मैं ऑफिस पहुंच गया। हस्बे तवक्का नाइला सबसे पहले पहुंची हुई थी। नाइला की आमद के बाद ही सारा स्टाफ पहुंचा करता था। मैंने देखा वो सीट पर बैठी पॉकेट मिरर से अपना मेकअप दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी। इसने मुझ पर एक उचपटी सी नज़र डाली और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई।
मैं भी अपनी सीट वगैरह को साफ करके कंप्यूटर खोल के बैठ गया। कल का ज़रूरी काम आज पूरा करना था और कल जो मीटिंग हुई थी इसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके सबमिट करने थे। अचानक मेरी नज़र नायला पर पड़ी और मैं फिर इसको देखता ही रह गया। नायला और मुझे साथ काम करते हुए 6 माह हुए थे। इन 6 माह में पहली बार नायला को देखने का मेरा ज़ाविया तब्दील हुआ। वो इतनी हसीन और खूबसूरत नज़र आ रही थी। कभी वो पहले इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आई। इसने सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहन रखा था और चेहरे पर लिबास की मुनासबत से मेकअप कर रखा था। इसकी आंखें इस कदर गहरी और हसीन नज़र आ रही थीं, मुझे इन आंखों में डूब मरने का दिल कर रहा था। इनकी गहराई झीलों से भी ज़्यादा थी। इसके खूबसूरत और लरसते लबों को देखकर मुझे वो गुलाब याद आ गए जिन पर शबनम के कतरे झलक उठे हों। बस मोहब्बत का एहसास मेरे दिल में जागुज़ी हो गया। आज पूरा दिन मुझसे काम ही ना हुआ, बस मैं इसी को देखता रहा। मेरी महवियत को इसने भी महसूस किया था, जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। शाम को छुट्टी के बाद हम सब घर के लिए निकल गए। मौसम खुशगवार था, धूप निकली हुई थी, लेकिन इसमें गर्मी का एहसास कम था। नायला भी बस स्टॉप पर खड़ी थी और मैं भी अचानक सबसे पहले मेरी बस आई और मैंने अपनी बस को जाने दिया, क्योंकि नायला की भी बस नहीं आई थी। स्टॉप पर और लोग भी थे, लेकिन मरकज़े निगाह नायला थी। नायला ने भी इस चीज़ को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराती हुई बस में सवार हो गई। इसकी इस तरह मुस्कुराने से एक बात तो साबित हो गई कि वो भी मुझे नापसंद नहीं करती है। हो सकता था इसने मेरी नज़रों और दिल के प्याम को समझ लिया हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मैंने बस को अपनी तरफ आते देखा। बस की रफ्तार तेज़ थी और वो बहुत ज़्यादा खिंचाखिंच भरी हुई थी। लोग दरवाजे पर डंडा पकड़कर खड़े थे। मैंने फ़ौरन ही बस की सिमत दौड़ लगा दी। बस रुकी, मेरे साथ और भी लोग भागे। जैसे ही मैंने बस का डंडा पकड़ा, किसी ने मेरा बाजू पकड़कर अपनी सिमत खींचा। जैसे ही इसने मुझे खींचा, मैं फ़ौरन ही गिर पड़ा और बस आगे बढ़ गई। बस के आगे बढ़ जाने के सबब मैं रोड पर सर के बल गिरा, जिससे मेरे सर के पिछले हिस्से पे चोट आई। मुझे यूं लगा कि मेरी आंखों के गिर्द सूरज तुलू होकर गुरूब हो गए हैं। मैं भिन्ना कर उठा और मेरे मुंह से मुग़लिज़ात जारी थे। मैंने पलट कर देखा तो हैरत और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा सारा दर्द हवा हो गया। ये वही था गंदा कंबल पोश मकरू और गलीज़। वो कंबल पोश मकरू इंसान मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था। इसके बदन से फूटने वाली बदबू मेरे दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। तुम, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। हाँ, हम, तुझे आभारी होना चाहिए हमारा। तुम्हारी जान बचा ली मैंने। वो दीदे पटपटा कर बोला, मतलब? अगर तू इस बस में जाता तो जान से जाता। क्या बक रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, तुझे बाद में खुद पता चल जाएगा। अगर तू हमारे काम का नहीं होता ना, तो मरने देते तुझे, हम ना बचाते। इसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस मकरू और गलीज़ इंसान को मुझसे क्या काम? मुझे तो ये काला इल्म करने वाला मालूम पड़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी इल्म के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो? कैसा काम? काली पहाड़ी आ जा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, धनवान कर देंगे तुझे। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। इसकी शक्ल देखकर मुझे उबकाई सी महसूस होने लगी। निहायत मकरू और नहुसत से भरपूर थी। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो दीवानों की तरह हंस पड़ा और अपने उलझे हुए बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे हुलिये पर मत जाओ, कसम माँ काली की, तू मेरे साथ दुनिया का हर सुख पाएगा। इसके लहजे में संजीदगी थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि इसके बदन से आने वाली नागवार महक मुझे पागल किए जा रही थी। मैं फ़ौरन अपने सर पर हाथ रखकर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। तू जिधर भी पग बढ़ाएगा मुझे अपने दवार पर पाएगा, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर टीवी खोलकर बैठ गया। मैं चैनल तब्दील करता जा रहा था कि एक बस हादसा की खबर सुनकर मैं चौंक गया। मैं फटी फटी आंखों से इस बस के हादसा की खबर को देख रहा था। ये वही बस थी
जिस पर मैं सवार हो रहा था। बस ब्रेक फेल होने के सबब आगे वाली एक दूसरी बस से टकरा गई थी और वो दोनों बसें फुटपाथ पर चढ़ गई थीं। 9 मुसाफिर और 2 राहगीर जहाँ बहक हो गए थे और मुतअद्दिद ज़ख्मी थे। इस गंदे और गलीज़ इंसान को कैसे पता चला कि जिस बस में मैं सवार हो रहा हूँ वो हादसे का शिकार होने वाली है? क्या वो किसी पुरअसरार कुव्वत का माहिर है या मेरा शक ठीक है कि वो काला जादू करता है? इसके बाद मैंने 2 दिन की छुट्टी कर ली थी क्योंकि मेरे सर पर चोट लगने के सबब सर से खून निकलने लगा था। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तोहफा ले जाना ना भूला। बग़ैर बताए छुट्टी करने पर मुझे बातें तो पड़ी थीं, लेकिन मुझे इसकी परवाह न थी। मैं जानता था कि इतनी बातों के बावजूद वो काम से तो नहीं निकालेंगे, अलबत्ता 2 दिन के पैसे काट लेंगे। काम के दौरान मैंने अपनी नज़रों का मरकज़ सिर्फ नायला की ज़ात को ही रखा था, क्योंकि इसकी डेस्क और मेरी डेस्क तकरीबन साथ ही थीं। नायला ने इस चीज़ को अच्छी तरह से फील कर लिया था कि मैं इसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा हूँ। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन मैं इसको तोहफ़ा न दे पाया। पूरे दिन वो मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखती रही, लेकिन मैं इसके पास जाने की हिम्मत न कर पाया। इन 2 दिनों में वो मेरे लिए एक ख़ास ही अहमियत इख्तियार कर गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों बस स्टॉप पर आ गए। मैं इससे थोड़े फासले पर खड़ा था। मेरी नज़रें मुसलसल इसकी तरफ थीं। इसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा, लेकिन बस में चढ़ते वक्त इसने फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। इसकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या बात थी कि मैं दिल थाम कर रह गया। इसके जाने के बाद मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और दूसरे मुसाफिर भी थे। अचानक मेरे जहन में वही वाक़या घूमने लगा। अगर इस गंदे कंबल पोश ने मेरी जान ना बचाई होती तो शायद आज मैं अपनी इस दास्तान को बयान करने के लिए ज़िंदा ना होता। मैंने एक झुरझुरी ली और बस में सवार हो गया। रात को ख्वाब में मैंने नायला को दुल्हन के रूप में देखा। लाल रंग के सुर्ख उरूसी जोड़े में वो आसमानों की हूर मालूम हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड पर जा बैठा और मैंने उरूसी लिबास में लिपटी नायला का घूंघट ऊपर किया। घूंघट के ऊपर करते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे घूंघट से चांद तुलू हो गया हो, जैसे कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया हो। माशाअल्लाह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला और वो शर्मा कर और सिमट गई। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ तुम्हारे आंचल से बांध दूँ। मेरी बात सुनकर इसने शर्मा कर मुझे देखा और फिर नज़रें झुका लीं। रात गुजरती जा रही है और फिर मैंने शेरवानी की जेब में हाथ डाला ही था कि एक तेज़ किस्म की बदबू मेरे नथनों से टकराई, जिसको सूंघ कर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वो गंदा कंबल पोश इंसान नायला के बिल्कुल बराबर में बैठा है और मुझे तंजिया नज़रों से घूर रहा है। ये तो सपना है, पर सच भी हो सकता है, परंतु हम चाहें तो। क्या चाहते हो तुम? हमने तो कहा था ना, जिधर तेरे पग धरें उधर तू हमें पाएगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी जान बचाई है। अपनी तरह का बलवान देखना चाहते हैं तुझको। नहीं बनना मुझे बलवान, मैंने चिल्ला कर कहा। कंबल पोश जवाब देने के बजाय हंसने लगा। इसको इस तरह हंसते देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया। हम जो सोच लें वही होता है। एक दिन तू हमारी बात ज़रूर मानेगा, वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने कोई जवाब न दिया, बस इसको जहरीली नज़रों से घूरने लगा था। अचानक मेरे जहन में न जाने क्या आया कि मैंने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरे ही लम्हे मुझे निहायत हज़मियत का सामना करना पड़ा था कि इसने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ा और साथ ही मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही मुझे सर के पिछले हिस्से में दर्द का एहसास हुआ था। शायद ये दर्द इसके धक्का देने के सबब हुआ था। ना जाने वो मुझसे क्या चाहता था। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था और फिर मेरी आँख लग गई। दूसरे दिन मैं ये फ़ैसला करके गया था कि आज मैं अपने दिल की बात इससे ज़रूर करूँगा। पूरे दिन ऑफिस में मुझे मौका ही न मिल सका कि मैं इससे बात कर सकूं, लेकिन शाम होते ही कुदरत ने मुझे आज खुद मौका फराहम कर दिया। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि वो मेरे नज़दीक आ गई। इसके इस तरह मेरे नज़दीक आने पर मैं बौखला सा गया। कैसे हैं मिस्टर अमजद? जी ठीक हूँ। मैं इसको करीब देखकर नर्वस हो चुका था।
मेरे इतने नर्वस रिएक्शन पर वो हंस पड़ी। इसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। इसके दांत मोतियों के जैसे सफ़ेद थे। इसको हंसता देखकर यूं लगा जैसे कि वक्त रुक गया हो। मैं यकटिक इसको देखने लगा। आप इस तरह नर्वस हो रहे हैं? नहीं तो। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे दिल के हाल से बखूबी वाकिफ है। अच्छा मिस्टर अमजद, पिक्चर का मूड था। 2 टिकट बुक करवाए थे। अकेले जाते हुए डर लगता है। अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। इसकी बात सुनकर मेरी बाँछें खिल गईं। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। मेरे हाँ करने पर इसने मुझे इस तरह देखा जैसे कि इसको यकीन हो कि मैं इसको मना नहीं करूँगा। हम दोनों ने साथ ही साथ पिक्चर देखी। मैं तो खैर पिक्चर क्या देखता, इसी को देखता रहा। फिर मैंने इसको डिनर की दावत दी जो इसने कबूल कर ली थी। डिनर के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के हालात ज़िंदगी जाने। फिर इसने रोज़ाना मुझे मुस्कुरा कर सलाम करना शुरू कर दिया। दफ्तर में खलबली मच गई। भला इन बातों का मुझ पर क्या असर पड़ता? मेरी और नायला की मोहब्बत अब परवान चढ़ने लगी थी। अब हम दिन रात मोबाइल पर बातें करते। ऑफिस में भी 2-3 बार वो मेरे पास आती और 2-3 बार मैं इसके पास जाता। गर्ज हमारी मोहब्बत की पटरी पर हमारी ट्रेन बड़ी सुबक रफ्तारी से दौड़ रही थी। इसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई मुझे अंकल कहते थे। गर्ज जिंदगी की गाड़ी बड़े ही सुकून से रवां दवां थी। इसी दौरान वो गंदा कंबल पोश मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया था। शायद इसने मेरा पीछा छोड़ दिया था। इसका तकरीबन हर खर्चा अब मुझ पर ही था। इसके घर की छोटी मोटी ज़रूरियात भी मेरी ही जेब पर पड़ती। गो कि ये सब मुझ पर बहुत भारी था, लेकिन मोहब्बत की खातिर मुझे सब मंजूर था। इसकी वजह से मेरी जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई। उल्टा मैं बहुत से लोगों का मकरूज़ हो गया था। होटल में अच्छे नाश्ते के बजाय चाय और बिस्किट पर ही गुजारा शुरू हो गया था। एक रोज़ किस्मत के तारीक दौर ने मुझे पलट कर देखा। मैं इस वक्त को भूलता नहीं जब इसने मुझसे कहा कि वो अगले माह को पूरी 20 साल की हो जाएगी। चुनाचे में इसकी खुशनबूदी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, तो मैंने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत खुशी की बात है मेरी रूह। फिर एक शानदार किस्म की सालगिरह होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान, मैं एक शानदार किस्म की दावत का इंतज़ाम करूँगा जिसमें हमारे साथ दफ्तर के तमाम लोग शरीक होंगे। एक बड़ा सा केक भी काटा जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और फिर दूसरे ही पल इसके हसीन चेहरे से उदासी झांकने लगी। मैंने कभी सालगिरह नहीं मनाई। इतने अखराजात हो जाएंगे, होने दो। नहीं नहीं, इतना बार है तुम पर मेरे घर का। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। जोशे मोहब्बत में सालगिरह एहतमाम करने की हिमाकत तो कर चुका था, मगर अब पैसे कहाँ से लाता? ऐसे में मुझे अपना मजीद याद आया। मजीद से मिलने के लिए मैं रात के वक्त इसके घर जा पहुँचा। मजीद मेरा वो दोस्त था जो कि मेरे हर मामले से वाकफियत रखता था। वो मेरा बचपन का दोस्त था। जब मैं इसके घर पहुँचा तो वो खाना खाने में मसरूफ़ था। मुझे इसने मेहमान खाने में बिठाया। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब वो आया तो इसके हाथ में चाय के 2 कप थे। हाँ बोल, कैसे याद किया? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, यार नायरा की सालगिरह है तो दावत देने आए हो? इसने चाय का घूंट लेते हुए कहा। नहीं यार, कुछ कर्जा। कितने? 10,000 तो हों यार। मैंने कहा, देख यार, पैसे तो ले जा, मगर इतना याद रख, जो लड़कियां खर्चा करवाएं वो काबिले भरोसा नहीं होती। बाकी तेरी मर्जी। यार नायला मेरी ज़िंदगी है, अब इसके बगैर रहना भी दुश्वार है। मैंने रिवायती आशिकों की तरह डायलॉग झाड़ते हुए कहा। इसके बाद मैंने पैसे लेकर इसके घर में एक छोटी सी शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब के लिए नहायत ही खूबसूरत दावती कार्ड छपवाए गए जो कि मजीद के पैसों से थे। पकवान सेंटर वालों से बिरयानी और खूबसूरत से केक का ऑर्डर भी दिया गया। जब दावती कार्ड छपकर आ गए तो इस दिन इसने मेरी मोहब्बत का सच्चे दिल से इकरार किया था और मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा किया था। कार्ड देखने के बाद इसके चेहरे पर जो खुशी नमूदार हुई, दुनिया की तमाम दौलत इसके सामने हीच थी। सच है, प्यार पैसे का भूखा नहीं होता।
सालगिरह के लिए मैंने इसको निहायत बेशकीमत सूट खरीद कर दिया। ये मेरा दिल ही जानता है कि मजीद के सारे पैसे खर्च हो जाने के बाद भी मुझे मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। दावत वाले दिन वो मरदूद भी आया था, जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। इसका नाम वासिफ बेग था। वासिफ की शक्लो सूरत काफ़ी वाजिबी सी थी, बल्कि कबूल सूरत भी कहना इसके साथ ज़्यादती होगी। लेकिन कपड़े बड़े अच्छे पहनता, बड़े ठाठ से रहता था। वो जब दावत में आया तो अपने कपड़ों की वजह से कदरे मुनफरिद लग रहा था। हमेशा कार में सफ़र करता और इसकी तनख्वाह भी मुझसे अच्छी थी। दफ्तर के सब लोग शरीक हुए थे। एक मखमली सा सुनहरा बॉक्स था जो इसने नायला की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना है। इसने एक अदा से झुकते हुए कहा। सब मेहमानों के दिए हुए तोहफों में वो बक्स सबसे अलग और मुनफरिद नज़र आ रहा था। इस डब्बे में न जाने ऐसा क्या था कि इसको खोलकर देखने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगी थी। सबसे ज़्यादा बेचैन नायला नज़र आ रही थी। इससे ज़्यादा मैं बेचैन था। सब मेहमानों के जाने के बाद हम दोनों ही इस डब्बे की जानिब लपके थे और तजस्सुस से इस डब्बे को खोल डाला। डब्बे के खुलते ही मेरी आंखें खैरा हो गईं। इसमें से एक खूबसूरत सोने का सेट जगमगा रहा था। सोने के इस सेट को देखते ही मेरे जबड़े लटक गए थे और नायरा का चेहरा गुलनार हो गया था। वो यकटेक इतने बेशकीमत तोहफे को देख रही थी। सोने का लगता है? नहीं यार, इमिटेशन है। इस पर सोने का पानी चढ़ा है। मैंने हसद भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं बेटा, खालिस सोना है। इसकी माँ ने तस्दीक करते हुए कहा। तुम्हें इन चीज़ों की क्या तमीज़? इसने मुंह बनाकर नाक सुकेड़ते हुए कहा और फिर वो सोने के सेट को पहनकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। वाकई सोना पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाज़ा न था कि वो इस कदर मुखलिस निकलेगा। ये सुनते ही जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। गुज़िश्ता 6 माह से जो खुलूस मैं दिखा रहा हूँ, इसका अंदाज़ा नहीं है इसको। लेकिन फिर मैंने सोचा ज़ेवरात तो औरत की कमज़ोरी होते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज़, इसने बेख्याली में अपने बुंदों को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। मैं हैरान रह गया। इतनी बेनियाज़ी! क्या ज़ेवर की चमक मोहब्बत की चमक को मांद कर सकती है? मेरी आंखों के गिर्द अंधेरे जाग उठे थे। दिमाग साए साए कर रहा था। वासिफ पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। इससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि दावत का राग खट चलाया क्यों था। लेकिन फिर मैंने दिल को समझाया कि कुछ नहीं है, वो तुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नायला ज़ेवरात के डब्बे में बंद हो चुकी है। रात देर तक मैं आवारागर्दी करता रहा और फिर फ्लैट में आकर सो गया। चूँकि दिल उदास था, इसलिए बहुत देर तक नींद न आ सकी। काफ़ी देर तक जागता रहा। फिर अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। वो आवाज़ न जाने कैसी थी, मेरी समझ में नहीं आया। पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। अचानक एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। इस बदबू से मेरे एहसासात शनासा थे। ये वही बदबू थी जो कि इस कंबल पोश से आ रही थी। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छटने लगा। मैंने देखा, मैंने अपने आप को एक लैक दैक सहरा में पाया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लैट के आरामदेह बिस्तर से इस सहरा का सफ़र मैंने कैसे तय किया। शायद ये इसी कंबल पोश मरदूद की कुव्वतें होंगी जिसने आराम से उठाकर मुझे सख्ती में ला फेंका था। अब मुझे घर वापसी का रास्ता ढूंढना था। प्यास से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। शराब के धोखे में मैं इधर उधर भटक रहा था। अचानक मैंने एक बादल के स्याह टुकड़े को देखा जो कि बड़ी तेज़ी से चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। फिर वो मेरे सर पर आकर मुसल्लित हो गया। अचानक ही इस बादल से बारिश बरसने लगी। मैंने जी भरकर पानी पिया। पानी पी चुकने के बाद मेरी प्यास बुझ गई और अचानक मुझे गर्मी महसूस होने लगी। बादल जा चुका था। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। अचानक मेरे हलक में शिद्दत प्यास से दोबारा कांटे पड़ना शुरू हो गए। यूँ लग रहा था कि किसी ने कोई नोकीली चीज़ मेरे हलक में डाल दी हो। फिर मुझे शदीद किस्म की खारिश का एहसास होने लगा। फिर मैंने इस मूज़ी को देखा जिसकी फितरत में ही डसना लिखा होता है।
वो काले रंग का सियाह कोबरा था जो मुझसे थोड़े ही फासले पर झूम रहा था। मैं फटी फटी आंखों से इस मूजी को देख रहा था जो मुझसे थोड़े ही फासले पर कुंडल मारे अपने फन को यूं लहरा रहा था कि जैसा अपना शिकार मिल गया हो। किसी वीरान और लैक दैक सहरा में मौत का तस्वुर मेरे लिए निहायत अजियतनाक था। मैंने सांप पर नजरें जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर दीवानों की तरह भागना शुरू कर दिया। ना ही मुझे खारिश की परवाह थी और ना ही प्यास, बस जिंदगी बचाने का एहसास हर चीज़ पर भारी था। भागते भागते मैं ज़रा रुका और फिर मैंने इसी सांप को पाया। इसे देखकर मैंने फिर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अचानक मेरा पैर फिसला और मैं लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा। जैसे ही मैं उठा अब सारा मंजर ही बदल चुका था। सहरा के बजाय पहाड़ी सिलसिले थे जो कि स्याह रंग के थे। धूप के बजाय ढलती हुई दोपहर थी, शाम होने वाली थी। मेरे सामने स्याह रंग के बड़े बड़े पहाड़ थे। सांप का कहीं भी पता न था। मुझे वापस प्यास और खारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक मैंने पानी गिरने की आवाज़ सुनी जो कि बहुत तेज़ थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे पानी कहीं भी गिरता दिखाई ना दिया। मैंने इस आवाज़ की सिमत पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक पहाड़ों पर चढ़ने के बाद अपने आप को एक आबशार पर पाया। पानी को देखकर मेरे दिल में नहाने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। मैंने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। पानी बहुत ठंडा था लेकिन इसमें एक अजीब सी ताजगी का एहसास था। इतना मीठा और फरहत बख्श पानी मैंने कभी नहीं देखा था। नहाकर बाहर निकला, जिस्म बहुत हल्का और ताज़ा हो चुका था। शाम के साए रात के अंधेरों में तब्दील हो चले थे। खारिश और प्यास ख़त्म हो चुकी थी। अब भूख का एहसास सता रहा था। मैंने चलना शुरू कर दिया। बिला मकसद ही काफ़ी देर तक चलता रहा। अंधेरा हो चुका था। चलते चलते मैं थक चुका था। अचानक मैंने एक रोशनी देखी जो कि मुझे पहाड़ की चोटी से आती महसूस हो रही थी। बहरहाल किसी न किसी तरह से मैं चोटी पर पहुंचा। चोटी पर आग का अलाव जलता नजर आया। इस अलाव के गिर्द मैंने एक इंसान को बैठे देखा। ये वही था, गंदा और मकरूह बदबूदार कंबल पोश। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, बदबू से सारा माहौल गलीज हो गया। वो कंबल पोश अलाव लकड़ी से कुछ कर रहा था। इसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बड़े गौर से देखने लगा। समय बीत रहा है, मूर्ख अपने हिट से बाज आ जा। अगर समय चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा, इसने संजीदगी से कहा। इसको देखकर वैसे ही मैं खौफजदा था। इसकी बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं खौफजदा लहजे में बोला, मुझे घर जाने दो, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। मेरी बात पर इसने मुझे जलती हुई नज़रों से देखा। मूर्ख धिक्कारी, तुझे समझा समझा कर मैं थक गया हूँ। हाथ आई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहा है? मुझे जाने दो, दफ़ा हो जाओ। मेरी मजबूरी है कि मैं तुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इतना कहकर इसने मुझे लकड़ी से धक्का दिया। धक्का ज़ोरदार था। मैं तेवरा कर गिरा और साथ ही मेरी आँख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। प्यास से हलक सूख रहा था और सांस धूकनी की तरह चल रहा था। ये दूसरी बार था जब इसने मेरे ख्वाबों पर डाका डाला था। वो क्या चाहता था ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम था कि इसका मकसद नेक नहीं है। मैं फौरी बिस्तर से उठा, फ्रिज की जानिब लपका। प्यास से हलक में कांटे पड़ रहे थे। ठंडे पानी ने मेरी प्यास में काफ़ी अफाका किया था। पानी के बाद जब मेरी हालत संभली तो मेरा जहन सोचों के जाल में उलझता ही चला गया। न जाने वो कौन था, क्या चाहता था, क्यों मजबूर है। ये ऐसे सवालात थे जिन पर मेरा दिमाग खामोश था। ये वो जवाबात थे जिनका जवाब सिर्फ वो ही दे सकता था। दूसरे दिन मैं सोकर लेट उठा था। ऑफिस का वक्त निकल चुका था और मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि जिस तरह से इसने बेनियाजी बरती है, इससे बात भी नहीं करूँगा और इससे खूब लड़ूंगा। मैं जानता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि इसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैं थोड़ी देर नाराज़गी का इजहार करूँगा और फिर चंद दिन तक रूठा रहूँगा और वो फिर मुझे मनाएगी तो मैं मान जाऊँगा। कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है,
और मैं भी अंधा हो गया था। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वो हमेशा ही मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती, लेकिन आज इस मुस्कुराहट में वो ज़िंदगी और जान नहीं थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। मैं इससे मुंह फुलाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैं जानता था कि वो थोड़ी ही देर के बाद आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। ऐसा कुछ ना हुआ, वरना वो 2 से 3 दफ़ा मेरे पास ज़रूर आती। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आज इससे जी भर के नाराज़गी का इजहार करूँगा, मगर वो मेरे पास ही ना आई। इसके किसी अंदाज से ऐसा ना लगा कि इसको मेरी नाराज़गी की परवाह है, ना कोई इज़्तिराब और ना ही कोई शर्मिंदगी। वो हस्बे मामूल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। वो हमेशा ऑफिस से जल्द ही निकल जाती, लेकिन आज मैं इससे थोड़ा पहले निकल आया था ताकि मैं इससे मिलकर मालूम कर सकूं कि मुस्तकबिल के तुम्हारे क्या इरादे हैं। हमने जो शादी के प्लान बनाए हैं, इसका क्या? जैसे मैं बाहर निकला मैंने देखा कि वो अपनी सीट पर नहीं है। मैं फ़ौरन ही बस स्टॉप की जानिब चल दिया। मैंने वासिफ बेग को देखा जो बेखबर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। वासिफ बेग को बस स्टॉप की तरफ जाता देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो हमेशा ही अपनी कार में सफ़र किया करता था और आज बस स्टॉप पर, हो सकता है इसकी कार ख़राब हो गई हो। अचानक मैंने नायला को आते देखा। नायला को देखकर मैं एक पोल की आड़ में हो गया। इन दोनों ने मुझे देखा था, इसीलिए मैं इनसे थोड़े फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मैं एक कार की आड़ में था। दोनों बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। नायला ने मुस्कुराकर इसको सलाम किया, जिसका जवाब भी मुस्कुराकर दिया गया था। मसरूफ़ हैं वासिफ साहब? नायला ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, कोई ख़ास नहीं, हुक्म? वासिफ ने भी मुस्कुरा कर कहा। फिर नायला ने जो कुछ कहा, इसको सुनकर मेरी दोनों आंखें हैरत से फैल गईं। वो कह रही थी, वो दरअसल पिक्चर का मूड था। 2 टिकट बुक करवाए थे। अकेले जाते हुए डर लगता है, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। दिमाग साए साए करने लगा। वासिफ ने क्या कहा मैं नहीं सुन सका। बस मैंने इतना देखा कि एक टैक्सी रुकी है और वो दोनों इसमें बैठ गए। मेरे दिल की दुनिया अंधेर हो गई थी। अपने इर्द गिर्द मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। जो लोग मोहब्बत में धोखा खा चुके हैं, इनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि मोहब्बत में नाकामी का दर्द क्या होता है। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से निकलकर ज़ेवरात की चमक दमक में गुम हो चुकी थी। मेरी मोहब्बत सोने चांदी की दीवार में चुन दी गई थी। मैं अपने इश्क व मोहब्बत का मातम मनाता हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन में ये तमाम ऑफिस स्टाफ और मेरे ये बात समझ में आ गई कि वो मुझसे दूर हो गई है। वासिफ की पोजीशन और स्टेटस ने इसको मुझसे छीन लिया है। तमाम दफ्तर स्टाफ मुझे यूं देखता कि जैसे कि मेरा मजाक उड़ा रहा हो। चंद दिनों में मेरी हालत वैसी हो गई जैसी कि मोहब्बत में धोखा खाने वालों की होती है। लेकिन इस हरजाई को इसकी परवाह ही ना थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरा दिल कई बार चाहा कि वासिफ की मुरम्मत कर दूं, पर थेवी राज की तरह अपनी नजूकता को उठाकर घोड़े पर भगा कर ले जाऊं, मगर ऐसा नामुमकिन था क्योंकि घोड़ा चलाना मुझे नहीं आता था। दिल में बहुत से ख्यालात आए कि नायला के चेहरे पर तेज़ाब डाल दूं ताकि ये हरजाई चेहरा कोई और न देख सके, मगर मैं इसको ऐसा सबक सिखाना चाहता था ताकि वो कभी भी किसी से बेवफाई के बारे में सोच भी ना सके। फिर एक रोज़ मेरी मोहब्बत का ताज महल पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया। कार्ड देखकर मेरे गुस्से की इंतहा न रही। फिर मैंने इससे बात करने का फ़ैसला किया। दूसरे दिन ऑफिस में मेरा मूड ख़राब रहा। इसी दौरान लंच का वक्त हो गया। सब लोग लंच के लिए उठ कर जाने लगे थे। इस दिन वासिफ बेग गैर हाजिर था। मैं उठकर इसके पास जा पहुंचा। मेरे हाथ में वासिफ बेग की फ़तह का ऐलान मौजूद था। ये क्या है? मैंने शादी कार्ड को इसकी मेज़ पर पटक दिया। जो तुम देख रहे हो, इसने लापरवाही से कहा और उठकर जाने लगी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि शादी कार्ड है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शादी का वादा तो तुमने मेरे साथ किया था। मेरा लहजा तल्ख था। मेरी बात सुनकर वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई और फिर बोली, वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। इसकी हंसी से तंज साफ जाहिर था। मुझे हर इस इंसान से मोहब्बत है जो दौलतमंद है।
वासिफ बेग तुमसे ज़्यादा दौलत रखता है, इसीलिए मुझे इससे मोहब्बत है। इसके पास अपना घर है, गाड़ी है, अच्छी सैलरी है, सबसे बड़ी बात वो अकेला है, और मुझे क्या चाहिए? घर तो मेरे पास भी है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। 2 कमरों के फ्लैट को तुम घर कहते हो? वासिफ का घर जाकर देखो, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। इसकी बात सुनकर मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मेरा हाथ उठ गया। एक भरपूर किस्म का थप्पड़ था जो सौगात बनकर इसके चेहरे पर पड़ा था। मेरा थप्पड़ खाकर वो भूखी शेरनी की तरह मेरी तरफ लपकी थी। इसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं के साथ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो मेरी तरफ लपकी थी, मैंने इसको बालों से पकड़ लिया। जंगली वहशी, छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बाल छोड़कर इसकी कलाई को पकड़ लिया और इस शिद्दत से मरोड़ा कि इसकी चीख निकल गई। इसकी चीख सुनकर ऑफिस बॉय, जो कि सेठ के कमरे की सफाई कर रहा था, मेरी जानिब लपका। ऑफिस बॉय ने बड़ी ही फुर्ती से इसकी कलाई को मुझसे छुड़वा लिया। अमजद साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी शिकायत करूँगा। ऑफिस बॉय का नाम तनवीर था। सेठों का बड़ा मुंह चढ़ा और बदतमीज़ था, और सेठों के काफ़ी करीब होने के सबब स्टाफ से काफ़ी बदतमीज़ी भी करता था। तुमने हिम्मत कैसे की हमारे बीच आने की? मेरा लहजा इंतहाई सख्त था। ये ऑफिस है अमजद साहब, ऑफिस बॉय ने कहा, लेकिन मैंने जवाब देने के बजाय इसको भी थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही वो बुदका। दूसरे ही लम्हे इसका भरपूर घूंसा मेरे जबड़े पर पड़ा था। नायला ये सब देख रही थी। जैसे ही मेरे जबड़े पर घूंसा लगा, मैंने नायला के होठों पर तज़हीक आमेज़ मुस्कुराहट देखी, जैसे कि वो कह रही हो, तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ एक औरत पर ही जाहिर हो सकती है। इसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। मैंने तनवीर को पलटकर धक्का दिया। धक्का ज़्यादा ही ज़ोरदार था। तनवीर तेवरा कर दूर जा गिरा। इसके सर पर चोट लग गई। इसके सर पर चोट लगती देखकर नायला चिल्लाई। इसी दौरान स्टाफ भी आ गया था। तनवीर तो मेरे ख़तरनाक तेवर देखकर पहले ही दुबक गया। ऑफिस का दूसरा स्टाफ अब जमा होना शुरू हो गया था। सब मुझे तंजिया नज़रों से घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि तुम गुस्सा करने और भड़कने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये सब देखकर नायला को ख़तरनाक हालात की धमकियां देता हुआ मैं ऑफिस से बाहर निकल आया। पूरा दिन मैं यूं ही घूमता रहा था। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अब मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। मैं पूरा दिन यूं ही बेमकसद घूमता रहा। रात देर गए मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया। शदीद गुस्से की हालत में तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जूतों समेत बेड पर दराज हो गया। वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने नायला को नफ़रत भरे व्हाट्सएप किए थे, जिनमें मैंने इसको नहायत ही ख़तरनाक हालात की धमकियाँ दी थीं कि मैं इसको जान से मार दूँगा, इसके चेहरे को तेज़ाब से जला दूँगा, न जाने क्या क्या। इसके बाद न जाने कब मेरी आँख लगी, मुझे याद ही नहीं रहा। बस इतना याद है कि मुझे किसी ने झंझोड़ कर जगाया था। इस बुरी तरह से झंझोड़े जाने पर मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मेरे सामने वही कंबल पोश था। बदबू से पूरा कमरा महक रहा था। वो मेरे बेड पर बैठा था। हैरत की बात ये थी कि मेरे कमरे की लाइट खुली थी। वो मेरे बेड पर बैठा मुझे इस्तहासिया नज़रों से देख रहा था। क्यों धोखा दे दिया ना प्रेमिका ने, इसने तंजिया अंदाज से कहा। एक तो मैं पहले ही परेशान था, दूसरे इस तरह जगाए जाने पर मेरा दिमाग घूम गया। तुमको इससे क्या मतलब? मेरा मामला है, मैं जानूं या मेरा काम? मेरे लहजे में गुस्सा था। तू बदला नहीं लेगा इस हरजाई से? वो हंसकर बोला। नहीं, तू चला जा यहाँ से, मैंने गुस्से से भिन्नाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। काफ़ी देर तक हंसने के बाद वो बोला, चल तेरा बदला लेते हैं। हमें काली पहाड़ी जाना होगा। आज पूरन मासी की रात है। अगर ये रात गुजर गई तो कभी नहीं आएगी। इसने मेरी तरफ देखकर तहमकाना लहजे में कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और इसने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि इसकी आंखों से नीली पीली चिंगारियां निकलकर मेरी आंखों के पार हो रही हों। उठ और कपड़े बदल ले, बाहर तुझे एक कार मिलेगी, इस कार में सवार हो जाना। इसकी बात सुनकर मैंने कोई तगर्रुज़ नहीं किया।
और तन्वीमी अंदाज में उठकर कपड़े तब्दील किए और फ्लैट से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रोड पर मुझे स्याह रंग की एक कार नज़र आई। इसका मैक मॉडल क्या था ये तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता इतना याद है कि वो बहुत पुरानी कार थी। मैंने देखा कि कार की पिछली सीट पर नाइला थी। कार की रोशनी में मैंने देखा कि इसके चेहरे पर बहुत तेज़ और गहरा किस्म का मेकअप हुआ था। इतने तेज़ और गहरे किस्म के मेकअप में मैंने इसको कभी नहीं देखा था। इसकी आंखें बंद थीं और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। नाइला को देखकर मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगा था। ड्राइविंग सीट पर एक हैट वाला शख्स मौजूद था, जिसकी झुकी हुई हैट के सबब मुझे इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने मुझे देखकर कहा, मेरे साथ आकर कार में बैठ जाओ। आवाज़ कदरे भारी फटी हुई थी। मैं बग़ैर किसी तगरज़ चुप करके इसके साथ कार में बैठ गया। कार चल पड़ी थी। अभी तक मुझे वो कंबल पोश दिखाई नहीं दिया था। एक बात सबसे हैरत अंगेज़ थी कि कार में बैठते ही वही नागवार सी बदबू मैंने महसूस की थी। जैसे ही वो बदबू मेरी नाक से टकराई, मुझे एक झटका सा लगा और मेरी हालत भी नाइला के जैसी हो गई। आँख खुली तो मैंने देखा कि कार एक ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। चांद की रोशनी में वो पहाड़ियाँ भूतों की मानद लग रही थीं। कार में मैं अकेला था, ना ही नाइला थी और ना ही वो ड्राइवर। मुझे शदीद किस्म की सर्दी का एहसास सता रहा था। कंबल पोश मुझे ले तो आया था, लेकिन खुद कहाँ था ये मुझे नहीं पता था। अब मेरा जहन पूरी तरह से बेदार था। मैं हैरान था कि मैं अपने घर के इस आरामदेह बिस्तर से वहाँ कैसे पहुँचा। मुझे याद आया कि कंबल पोश मेरे बेड पर आकर बैठ गया था और इसने मुझे अपने ज़ेरे असर लेकर घर से बाहर निकलने को कहा था। मुझे इस जगह से खौफ महसूस होने लगा। सर्दी का शदीद एहसास था जिससे मेरे दांत बजने लगे थे। अचानक मेरे कानों ने पानी गिरने की आवाज़ सुनी। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुरीली आवाज़ में गा रहा है। ये आवाज़ किसी औरत की मालूम होती थी। रात के इस पहर में तन्हाई और औरत के गाने की आवाज़ बड़ा ही पुरअसरार सा माहौल था। यूँ लग रहा था कि जैसे कि हॉलीवुड की खौफनाक फिल्मों की शूटिंग हो रही हो। मैंने कार टार्च निकाली ही थी कि अचानक मुझे वही पुरअसरार आदमी जो कि कार चला रहा था, साथ ही वो बदबू भी महसूस हुई थी जो कि कंबल पोश का खासा थी। वो आदमी मुझे इशारे कर रहा था, लेकिन मैंने इसके इशारे का कोई जवाब ना दिया। वो पुरअसरार आदमी चंद लम्हे तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर आहिस्ता से मेरी तरफ चला आया। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने फिर वही बदबू सूंघी और साथ ही मेरा जहन बेसुध हो गया। अब इसने इशारा किया और मैं इस स्याह पोश के पीछे पीछे चल पड़ा। चांद की रोशनी में माहौल बड़ा ही पुरअसरार महसूस हो रहा था। किसी औरत के गाने की आवाज़ अब तक मेरे कानों को सुनाई दे रही थी। इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द और कर्ब था। गाना कौन सी ज़बान में था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन था बड़ा ही मुतासिर कुन। मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। इसने अपना चेहरा हैट में छुपा रखा था। वो मनहूस कंबल पोश अब तक नहीं दिखाई दिया था। हमें चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। इसी जगह पहुंच गए जहां चारों अतराफ सुर्ख रंग के पहाड़ थे और इसकी ज़मीन भी सुर्ख रंग की थी। फ़ज़ा में अजीब सा धुआं फैला हुआ था जिसका रंग सफ़ेद था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस धुएं के आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। हम काफ़ी देर तक आगे बढ़ते ही रहे। सर्दी का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गए जहां एक बड़ी दलदल नज़र आ रही थी। वो स्याह पोश मुझसे एक कदम आगे था। अचानक मैंने इस दुश्मने दिल को देखा जो कि इस तरह झूमती हुई मेरी तरफ आ रही थी। हाँ, ये नाइला थी। नाइला की आंखें सुर्ख थीं। ऐसा लगता था कि इसने बैग शराब के चढ़ा लिए हैं। नाइला दलदल के पास पहुंचकर रुक गई। स्याह पोश ने मुझे देखकर अपनी हैट उतार दी। इसको देखते ही मैं उछल पड़ा। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये वही कंबल पोश था जो कि निहायत मकरूह और गंदा था, लेकिन इस वक्त बड़े ही साफ सुथरे लिबाते में मलबूस था। इससे उठने वाली बदबू भी कम थी। नाइला तनवीमी अमल के ज़ेरे असर इस दलदल के सामने आकर खड़ी हो गई।
नायला यूं झूम रही थी जैसे कि इस पर बहुत ज्यादा नशा सवार हो। कंबल पोश स्याह पोश ने न जाने कहां से काली देवी का एक स्याह मकरू किस्म का बुत निकाला और दलदल के सामने रख दिया। बुत का साइज एक कोका कोला की जंबो बोतल जितना था। बुत को दलदल के सामने रखकर वो सजदे में गिर पड़ा। देवी माँ, मेरी मदद कर, तेरा ये सेवक तेरी बलि लेकर आ गया है। तू अपने इस सेवक पर करम फरमा, इसकी मदद फरमा, सालों की मनोकामना पूरी फरमा, इसकी बलि कबूल फरमा। इतना कहकर वो सजदे से उठ खड़ा हुआ। सजदे से उठकर वो सीधा मेरी तरफ आ गया। मैं शशतर खड़ा इसको देख रहा था। ना जाने कौन सी इसकी मुराद थी जिसके लिए ये मेरे पीछे पड़ा था। ये ले अपना बदला ले ले, मार डाल इस हरजाई को, वैसे भी इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसने मेरी तरफ खंजर बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं नहीं, इसका गुनाह ऐसा तो नहीं जिस पर इसको मौत की सज़ा दी जाए। मैंने खौफ से कहा, ये तो करना होगा तुझे। वो मुस्कुराया। साथ ही इसने मुझे तेज़ नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। इसकी छोटी छोटी सी मकरू आँखों से बरकी रो निकलकर मुझ में मुंतकिल हो गई। अब मैं पूरी तरह से इसकी निगाहों के सहर में था। मैं खंजर लेकर इसकी तरफ बढ़ा। मैं दुनिया का पहला इंसान होऊंगा जिसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का कत्ल किया होगा। नायला के गले पर खंजर फेरते ही इसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली और बहुत सा खून निकलकर इस दलदल में गिरने लगा। नायला तेवरा कर ज़मीन पर गिरी और तड़पने लगी। अपनी मोहब्बत को तड़पते हुए देखकर दिल खून खून हो गया। नायला को मरता देखकर इस मरदूद के होठों पर बड़ी पुरस्रार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बलि पूरी हुई। दलदल में हाथ डालकर मेरी चीज़ बाहर निकाल दे जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, इसने मुझे हुक्म दिया। मैंने फ़ौरन ही दलदल में हाथ डाल दिया। हाथ डालते ही एक ठोस चीज़ से मेरा हाथ टकराया। अचानक एक तेज़ किस्म की मर्दाना चीज़ से मेरा हाथ लरस गया और वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। मैं फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं उठा मुझे किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया। मैंने इस पुरस्रार शख्स की आंखों में मायूसी देखी और फिर मेरी आंख खुल गई तो गोया ये सब ख्वाब था। वो कंबल पोश मरदूद मेरे आसाब पर इस कदर सवार था कि इसने ख्वाबों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरे हवास मेरा साथ छोड़ चुके थे। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। सुबह के 5 का वक्त था। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये सब ख्वाब नहीं। अचानक मेरी नज़र अपने सीधे हाथ पर पड़ी। अपने हाथ को देखकर मैं चौंक गया। मेरा हाथ कोहनी तक कीचड़ में भरा हुआ था। मैं फ़ौरन ही उठकर गुसलखाने की तरफ भागा। जैसे ही मैंने आईने में अपने आप को देखा, मैं हैरत और खौफ से उछल पड़ा। मेरी पूरी शर्ट खून में लाल हो चुकी थी। मैं फ़ौरन ही नहाया और कपड़े तब्दील किए और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं पड़ा करवटें बदलता रहा। बिल आखिर नींद की देवी को मेहरबान भी होना पड़ा। शदीद किस्म की धड़धड़ाहट से मेरी आंख खुल गई। कोई दरवाजे पर था जो दरवाजे को बुरी तरह से पीट रहा था। कौन है? दरवाज़ा खोलो। एक तहमकाना किस्म की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जवाब दो, फिर खोलूँगा। मैंने भी इसी तरह जवाब दिया, लेकिन इनके जवाब के बजाय दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकरों में मज़ीद शिद्दत आ गई। लकड़ी का मामूली सा दरवाज़ा था, कमज़ोर था। बेचारा ठोकरें बर्दाश्त न कर पाया और खुल गया। वो तादाद में 5 थे जो कि मलकुल मौत की तरह नाजिल हुए थे। पुलिस वाले यूं मुझ पर टूट पड़े जैसे कि मैं कोई आदी मुजरिम हूँ। पल भर में ही उन्होंने मुझे बेबस कर दिया। फिर मुझे वो धक्के देते हुए नीचे ले गए और किसी जानवर की तरह पुलिस वैन में पटक दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जुर्म की पादाश में इस जानवरों जैसे सलूक का मुस्तहिक हुआ हूँ। पुलिस वैन में मुझे सारे संतरी यूं घूर रहे थे जैसे कि कसाई बकरे को घूरता है। इनकी तेज़ नज़रों की ताब न लाते हुए मैंने अपनी नज़रें झुका ली और ख़ुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। हालात ने जिस तेज़ी से रुख बदला था, इसने मुझे हिलाकर रख दिया था। कल तक एक मामूली क्लर्क आज कानून का एक मुजरिम बन चुका था।
نہ جانے ایسا کون سا گناہ تھا جو مجھے ان حالات کا سامنا تھا۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک جلاد سے پولیس آفیسر پہلے سے منتظر تھا۔ اس کی بڑی بڑی وحشت ناک آنکھوں میں وہ تمام کیفیات تھیں جو کسی مجرم کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ وہ مجھے اس طرح گھورنے لگا جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر میں نے ذرا بھی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا تو میرے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے دل کڑا کے قدرے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا، میرا جرم کیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ اس نے بھویں چڑھا کر کچھ ایسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ میں گڑبڑا گیا اور میری جمع شدہ ساری ہمت جواب دینے لگی۔ اگر مجھے حالات کا علم ہوتا تو آپ سے کیوں دریافت کرتا؟ نائلہ کو جانتے ہو؟ ایس پی نے مجھے گھورتے ہوئے کڑے تیور سے جواب دیا۔ وہ پولیس افسر اپنے تیوروں سے سخت گیر معلوم ہوتا تھا۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی اور جب اس نے شادی سے انکار کیا تو تم نے اس کو قتل کر دیا۔ نائلہ کے قتل کی بات سن کر میں بھون چکا رہ گیا۔ گزشتہ رات والا خواب میرے ذہن میں گھوم گیا تو گویا وہ خواب نہیں تھا، مگر میں نے نائلہ کو حالت خواب میں قتل کیا تھا، مگر وہ حقیقت میں مر جائے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کے وہ افسر مجھے گھورتا ہوا بولا، تم نے بڑی ہی بے دردی سے اس کا گلا کاٹا، مگر ایک بے وقوفی کر گئے، خنجر لاش کے پاس چھوڑ کر ہی فرار ہو گئے۔ میں نے اس کا خون نہیں کیا۔ میں نے چلا کر کہا، بکو مت، سیدھی طرح اقرار جرم کر لو۔ اگر خنجر سے تمہاری انگلیوں کے نشانات برآمد ہو گئے تو تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ وہ چیخ پڑا، میں نے کچھ نہیں کیا، ہمیں سب معلوم ہے، تمہارے آفس کا پیون اور سارا اسٹاف تمہاری لڑائی کا گواہ ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں بے گناہ ہوں۔ اس پر ایس پی نے دانت پیس کر قہر آلود لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہاری ڈرائنگ روم سے واقفیت نہیں، تمہارے جیسے بے گناہ فر بولنے لگتے ہیں وہاں۔ میں تم کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری سیر ڈرائنگ روم سے کرواؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماتحت کو کہا، اس کے فنگر پرنٹس لو اور ایگزامن کے لیے بھیج دو۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس افسر کے چلے جانے پر 2 سنتریوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ایک لاک اپ میں لا کر پٹخ دیا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن خوف و دہشت سے میری بھوک بھی مر گئی تھی۔ مجھے ہر لمحہ، ہر آن پھانسی کا پھندا جھولتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آلہ قتل پر میری انگلیوں کے نشانات ملیں گے، لیکن میں بے گناہ تھا۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ اس کمبل پوش مکروہ انسان کے کالے جادو کے سحر سے اس نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ لاک اپ کی ٹھنڈی زمین پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاش میں جذبات میں آ کر نائلہ کو دھمکیاں نہ دیتا تو یہ حال مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک قیدی کو لاک اپ میں لا کر ڈال دیا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کو دیکھا تھا۔ وہ شخص صورت سے چھٹا ہوا بدمعاش لگتا تھا۔ اس کی عمر 40-42 سال کے آس پاس تھی۔ وہ قیدی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ بیٹھا رہا اور پھر اونگنے لگا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد وہ منہ ادھر کر کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کے خراٹے پورے لاک اپ میں گونجنے لگے تھے۔ اس کے خراٹوں سے نہایت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی اپنے خراٹے بند کرو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں نے زور سے چلا کر کہا۔ خراٹے بند ہونے کے بجائے اور مزید بڑھ گئے۔ اس بات سے میں مزید چلاہٹ کا شکار ہو گیا اور میں اس کے قریب گیا اور اس کے شانے کو ہلا دیا۔ شانے کے ہلتے ہی قیدی نے اپنا چہرہ گھمایا۔ قیدی کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، وہ کمبل پوش تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ اور ناپاک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھ کر کہا۔ ہاں کہو، دماغ ٹھکانے آیا کہ نہیں؟ وہ ہنس کر بولا، نائلہ کا خون تم نے کیوں کیا؟ ہرجائی تھی نا وہ، اس کا مرنا ضروری تھا۔
اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا، تم نے اس کا فون کر کے مجھ پر الزام کیوں لگایا ہے؟ ہم نے کہاں فون کیا؟ فون تو تو نے کیا، اور فون کرتا نہیں، اپنی ودیا سے کرواتا ہوں۔ اسی رات اپنی ودیا سے تم کو اور اس ہرجائی کو اپنے وش میں کر لیا تھا اور دیوی کی بلی دے دی۔ بلی مگر کیوں؟ میرے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ یہ ایک راز ہے، گہرا راز۔ مطلب یہ کہ بھولے لال، میرا کام تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، جب تو نے جنم لیا اس وقت پورن ماشی کی رات کی چندرما کی کرنیں تیرے ہاتھ پر بنے ہوئے قدرتی چندرما کے نشان کو چھو رہی تھیں، اور ایسے لوگ چندر پتر کہلاتے ہیں اور ورشوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ اپنی اس توہم پرستی پر اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ واقعی میرے دائیں ہاتھ پر چاند کا قدرتی نشان تھا، اور میری والدہ بتاتی تھی جب میں پیدا ہوا تو آسمان پر پورا چاند تھا اور روشنی کی کرنیں اس نشان کو چھو رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ تیرا جو بھی کام ہے وہ تو میں نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، مادھون کو انکار پسند نہیں، سمجھا تو؟ میں تو نہیں کروں گا، ہاں اپنی نائلہ کا بدلہ ضرور تجھ سے لوں گا۔ لگتا ہے تجھے تھوڑی اور دوا دینی ہی پڑے گی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی پاتا کہ میں نے اس کے گلے کو پکڑ لیا، لیکن میں یہ بھول گیا کہ وہ کس قدر شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ میرا گلا پکڑتے ہی اس کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر جیل کا سارا عملہ لاک اپ میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ مادھون کو میرے شکنجے سے چھڑا سکے، مگر وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ یہ میری نائلہ کا قاتل ہے۔ جیل کے سنتریوں نے مادھون کو مجھ سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو میرے سر پر رائفل کے بٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک ضرب میں اس کی گردن میرے شکنجے سے نکل گئی، لیکن اس وقت مادھون مر چکا تھا۔ لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ مادھون نہیں، کوئی اور تھا۔ گویا اپنی قوتوں سے مادھون نے ایک اور خون میرے سر منڈ دیا تھا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ہسپتال کا کمرہ تھا۔ ٹھیک ہونے میں 2 ماہ لگ گئے۔ ان 2 ماہ میں وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آیا۔ جب تک میں ہسپتال میں رہا، ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ نائلہ اور قیدی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے لاکھ یقین دلایا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، مگر وہ نہ مانے اور مجھے سزا سنا دی گئی۔ پھانسی کے لیے جس کوٹری میں مجھے بند کیا گیا تھا، اس کی زمین کھردری تھی۔ زمین پر لیٹ کر میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جیل کے سارے لوگ مجھے نفسیاتی سمجھ رہے تھے کہ محض خراٹے لینے پر ایک بندے کو قتل کر دیا تھا۔ پھانسی کا پھندا میری آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ کچھ دنوں میں میری زندگی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اچانک وہی ناگوار بدبو والے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اب بھی تو بچ سکتا ہے اگر تو میری بات مان لے، ورنہ سوچ گردن لمبی ہو جائے گی۔ ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پھانسی کے تصور سے ٹھنڈے پسینے میرے ماتھے سے پھوٹ پڑے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جیون بھی بہت قیمتی ہے، سوچ مت، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بہت خزانہ ہمارا ہوگا۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خزانے کے نام پر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کرنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ میری بات پر پوری کوٹری میں وہی ناگوار سی بدبو پھیل گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک عالیشان اور سجے ہوئے بستر پر پایا تھا۔ کمرہ نہایت ہی یک بستہ تھا۔ میرے الجھے ہوئے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ میں دیر تک پڑا اپنے بارے میں سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ پوری طرح سے حواس بحال ہونے کے بعد میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرہ صاف ستھرا اور ضروریات زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں سے آراستہ تھا۔ مجھے اچانک یاد آنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں پھانسی کا انتظار کرتے ہوئے کال کوٹری میں تھا
और फिर माधवन ने वहाँ से फरार करवा कर यहाँ पहुँचा दिया था। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरे कदम खुले हुए दरवाजे की जानिब उठ गए, लेकिन मैं दरमियान में ही ठठक कर रुक गया। कमरे में मौजूद आईनी अलमारी के आईने में अपने आप को देखकर एक लहजा के लिए मुझे अपने वजूद पर शुबा हुआ था कि ये मैं हूँ या कोई और। मैंने फटी फटी आंखों से अपने वजूद का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर खद्दर का कुर्ता और पजामा मौजूद था। मेरे सर के बाल बड़े हुए थे और दाढ़ी में भी बेपनाह इजाफा हो चुका था। पहली बार तो मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाया था। इतने जल्दी मेरे अंदर इतनी तब्दीलियां कैसे पैदा हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? मैं अपने अंदर इन तब्दीलियों को देखकर हैरत ज़दा रह गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक मैंने कदमों की आहट सुनी। मैंने पलटकर दरवाजे की सिमत निगाह डाली। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरी आंखें खैरा हो गईं। मेरी निगाहों के सामने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा न थी। वो बहुत हसीन थी। इसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। इसको देखकर मुझे नायला याद आ गई। वो भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बिल्कुल झीलों की गहरी शराब की तरह नशीली। इसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों के से थे। गर्ज इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। इसने कामनी रंग की साड़ी ज़ेब-ए-तन कर रखी थी। कहाँ जा रहे हैं सरकार? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। माधवन साहब का हुक्म है, आप कहीं ना जाएं। वो फिर से मुस्कुरा कर बोली। इसकी मुस्कुराहट जिंदगी से भरपूर थी। कहाँ है वो? अभी वो लड़की कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि अचानक मेरे नथनों से एक तेज़ किस्म की खुशबू टकराई थी। वो खुशबू इस कदर शदीद थी कि मुझे अपनी नाक बंद होती महसूस हुई। यूँ लगता था कि जैसे इसने परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर उंडेल ली हो। दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी तेज़ खुशबू इसके पास से आ रही थी। ये कोई और नहीं माधवन था। गालबन इसने अपने पास से आने वाली बदबू से बचने के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू का इस्तेमाल किया था। वो मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। इसको देखकर मैं हैरान रह गया। इतना गलीज़ और बदबूदार इंसान जो मैंने कभी नहीं देखा था, इतने साफ़ और नफीस कपड़ों में मेरे सामने मौजूद था। आज मैं इसको पहली बार इतने अच्छे अंदाज में देख रहा था। बिलाशुबा वो एक स्मार्ट शख्स था। इसने गहरे रंग का सफारी सूट पहन रखा था जिसमें वो बहुत जच रहा था। क्या देख रहा है? वो मुस्कुराया। देख रहा हूँ कि गलाजत के ढेर में फूल कैसे खिल गए। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। हमने सौगंध खाई थी कि तू मिल जाएगा तो हम नहाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वाकई इसकी तरह इसकी कसम भी निराली थी। भूख लगी है, कुछ खाएगा? हाँ खाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा हुलिया कैसे बदल गया? बस ये हमारी शक्तियों का चमत्कार है। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद मैं बेड पर वापस जाकर बैठ गया। भागने का सवाल ही ना था। मैं जहाँ भी जाता ये मुझे पकड़ ही लेता। अगर मैं इससे बच भी जाता तो कानून से कहाँ बच पाता। अब तक मुझे जगह जगह ढूंढा जा रहा होगा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने इसका साथ तो दे दिया, लेकिन अहद ज़रूर किया था कि नायला की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। लड़की मेरे ही सामने खड़ी थी और मुझे शौफ नज़रों से देख रही थी। बिलाशुबा वो नहायत ही खूबसूरत लड़की थी। मैंने सोचा कि लड़की से थोड़ी बातें करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी कामनी, इसने शर्मा कर कहा। इसकी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी बात सुनकर इसकी कंवल सी आंखों में फूल खिल उठे थे। तुम माधवन के साथ कब से हो? मैंने सवाल इसलिए किया था कि माधवन जैसे गलीज़ इंसान के पास इतनी खूबसूरत लड़की कैसे रह सकती है। अभी वो जवाब देना ही चाहती थी कि अचानक माधवन कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक प्लेट थी और एक कटोरा था। इसने प्लेट मेरे सामने रख दी। इस प्लेट में सफ़ेद चावल जिस पर सब्ज़ी डली हुई थी और कटोरे में ब्राउन रंग का कोई मशरूब मौजूद था जिससे उठने वाली महक बहुत अजीब सी थी। ले खा ले और इसको पी ले। ये सोम रस है, देवताओं का रस।
चावल तो मैंने खा लिए, मगर इस ब्राउन रंग के मशरूब को पीने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन माधवन के मजबूर करने पर मैंने इसको अपने होठों से लगा लिया। पहला घूंट जैसे ही मेरे हलक से उतरा, मेरे जिस्म में, सीने में जैसे आग सी लग गई। दूसरा घूंट हलक से उतरते ही मुझ पर सरूर की सी कैफियत तारी होने लगी। मुझे सरूर में आता देखकर माधवन और इस लड़की के होठों पर पुरइसरार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से लहराने लगा था। मुझे माधवन और वो लड़की एक से दो नज़र आने लगे थे। मेरी ये कैफियत देखकर माधवन ने इस लड़की को मुखातिब किया। ऐ इंद्र देवता की अप्सरा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, देवताओं के कहे के अनुसार अपने धर्म का पालन कर। लहराते हुए दिमाग से मैंने सिर्फ इतना देखा कि वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे नज़दीक आई और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके हाथ पकड़ते ही मेरे जिस्म में खून की जगह जैसे पेट्रोल गर्दिश करने लगा। फिर अचानक कमरे की सारी रोशनियां गुल हो गईं। वो लड़की ना जाने किस वक्त गई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो लम्हात जैसे कि मेरी ज़िंदगी का हासिल रहे थे। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी मैं इस लड़की को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। इसने चंद पलों के लिए ही सही नायला को मेरे दिल से महव कर दिया था। रात को नींद के आलम में अजीबो गरीब ख्वाब देखता रहा। कभी मुझे माधवन एक सांप के रूप में नजर आता, कभी नेवले के रूप में, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि माधवन का मकसद खजाना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। अगर सिर्फ खजाना होता तो अपनी शैतानी कुव्वतों से खजाने तक ज़रूर पहुंच जाता। वो मकसद क्या था, ये बहुत जल्द ही पता लग जाना था। रात ना जाने किस पहर एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में नीम अंधेरा था। अचानक मैंने अपने सीने के पास दो सुर्ख आँखें देखीं। मैं कुछ न समझ पाया ये किसकी आँखें हैं। दो छोटी छोटी सुर्ख आँखें जिनमें अजीब तरह की वहशत थी। अचानक मैंने शोर की आवाज़ सुनी, फिर पूरे ही कमरे में रोशनी फैल गई। अपनी मौत को अपने सीने पर सवार देखा था मैंने। वो सुर्ख रंग का एक चमकीला सांप था जिसके सर पर गोल्डन कलगी थी। वो मेरे सीने पर बैठा मुझे गजबनाक नज़रों से देख रहा था। इसकी मकरू ज़बान तेज़ तेज़ लपलपा रही थी। मौत को इतने करीब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मुझ पर जैसे सख्ती किसी कैफियत तारी हो गई थी। यूँ लगता था कि मेरे जिस्म में अब हिलने जुलने की ताकत ही ना रही हो। जो लोग सांपों की अक़साम से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं सुर्ख रंग का सांप कितना खतरनाक होता है। इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। अचानक वो सांप आहिस्ता से पीछे हटने लगा। थोड़ी पीछे हटते ही इसने आगे बढ़कर मेरे हाथ पर डस लिया। सांप के डसते ही मेरा जहन तेजी से गनूदगी से दो चार होने लगा। अमजद बेग, अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। मरते ही तुम नायला के पास पहुंच जाओगे। वहां जाकर इससे माफ़ी मांग लेना कि तुमने इसको बेवफाई की सज़ा मौत की सूरत में दी थी। अचानक मैंने तेज़ किस्म की खुशबू सूंघी। फिर मैंने चीख की आवाज़ सुनी। ये चीख माधवन की थी। हिलना मत, जितना हिलोगे जहर तेज़ी से फैलेगा। वहाँ दोनों उंगलियाँ रख लो जहाँ इस भिखारी ने डसा है। मैंने देखा माधवन तेज़ी से मेरी सिमत दौड़ा आ रहा है। सांप अभी तक मेरे ही सीने पर सवार था। माधवन सांप को देखकर गजबनाक अंदाज में गुर्राया। सतपाल, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर इसने सांप पर हाथ डाल दिया। सांप बुरी तरह से तड़पा, लेकिन माधवन की गिरफ्त मजबूत थी। सांप ने माधवन के हाथ में आते ही तड़प कर माधवन के भी हाथ पर डस लिया। मेरा जहन तेजी से अंधेरों में डूब रहा था। हाथ पर डसते ही सांप इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। जहन के मुकम्मल डूबने से कबल मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि सांप फर्श पर गिरते ही गायब हो गया और माधवन तेजी से मेरी जानिब लपका है। मैं नहीं जानता मुझे कितनी देर के बाद होश आया। होश आने के बाद पहला एहसास मेरे जिस्म में शदीद किस्म की तकलीफ का था। आंखों के गिर्द सुर्ख धब्बे नाच रहे थे। ऐसे में कुछ अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ों की भिन भिनाहट कानों में पड़ रही थी, जिससे दिमाग में एक नागवार सा तासुर उभर रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिमाग हाजिर ना था। जहन पर धुंध सी जमी हुई थी। अचानक वो धुंध सी छट गई। न जाने वो कौन सी जगह थी। सारी सफ़ेद दीवारें, पर्दे, चादर, हर चीज़ सफ़ेद।
मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई अस्पताल का कमरा है। मेरे बिल्कुल बराबर में एक और बिस्तर है जिस पर मुंह ढके कोई पड़ा है। शायद वो कोई मुर्दा था। तो क्या मैं मर चुका हूँ? क्या ये अस्पताल का मुर्दा खाना है? लेकिन वो कमरा कहीं से भी मुर्दा खाना मालूम नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ किसी मुर्दे को क्यों रखा गया है? ये मुर्दा खाने ऐसे तो नहीं होते। अचानक मुझे सारा मंजर याद आने लगा था। मुझे किसी सांप ने काटा था। मुझे याद आया, नीम गनूदा जहन के साथ मैंने माधवन को अपनी जानिब लपकते हुए देखा था। मेरी नज़र छतगीर पंखे पर पड़ी। पंखे पर जो कुछ था इसको देखकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। छत पर वही सांप था जो कि पंखे से चिपका हुआ था। अचानक फैन चल पड़ा। फैन के चलते ही वो सांप जन की आवाज़ से मुझ पर आ गिरा। सांप के गिरते ही मेरे हलक से चीखें बरामद होना शुरू हो गई। सांप अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। अचानक मैंने हिम्मत करते हुए सांप को एक हाथ से धक्का मारा। मेरे धक्का लगते ही सांप फर्श पर जा गिरा। सांप के फर्श पर गिरते ही फर्श पर यक्के बाद दीगरे बहुत से सांप पैदा हो गए थे। हर सांप का रंग दूसरे सांप से अलग था। वो सारे सांप कमरे के फर्श पर फैलते ही जा रहे थे। अचानक मेरे बराबर वाले बिस्तर पर जो मुंह ढापे लेटा था, आहिस्ता आहिस्ता इसके मुंह से चादर सिरकने लगी थी। चादर के सिरकने के सबब इसकी पेशानी नजर आने लगी। इसकी पेशानी पर सफ़ेद सी छोटी छोटी कोई चीज़ नजर आ रही थी। इस पर मैं यकीन करने को तैयार न था। फिर जो कुछ नजर आया, इसको देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बारीक चावल के दाने के बराबर कीड़े थे जो कि इसकी पेशानी पर कुलबुला रहे थे। ये सब देखकर खौफ से मेरा रुआं रुआं खड़ा हो गया। फिर इसके जिस्म पर मौजूद चादर सरक गई। सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हज़ारों की तादाद में इसके जिस्म पर कुलबुला रहे थे। इसके चेहरे को देखकर खौफ से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो कोई और नहीं, नाइला थी। हाँ, हरजाई नाइला, बेवफा नाइला, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। इसका चेहरा सूज चुका था। अचानक वो मुंह खोलकर हंसी। कल तक जो हंसी मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, आज इससे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने देखा कि इसके मुंह के अंदर हज़ारों कीड़े कुलबुला रहे हैं। मेरी बेवफाई की सज़ा मेरी मौत तो नहीं थी। इसने बैठी हुई आवाज़ के साथ मुझसे पूछा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमको लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो मेरी तरफ दोनों बाहें फैलाए आगे बढ़ने लगी। मैंने देखा कि फर्श पर मौजूद सांप इसके पैरों तले आकर पानी बन जाते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, इसके जिस्म के कीड़े फर्श पर फैल जाते। इन कीड़ों को सांप खाने लगते। इसको करीब आता देखकर खौफ से मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मेरे हलक से दिल खराश चीखें निकलना शुरू हो गई थीं। फिर किसी ने मेरे शानों को पकड़ लिया। काहे चीख रहा है? एक तेज़ किस्म की खुशबू मेरी कुव्वत शमामा से टकराई। मैंने घबरा के आंखें खोल दी। अब तो सारा ही मंजर बदल चुका था। मैं इसी साफ सुथरे कमरे में था और मेरे सामने माधवन बैठा था जो मुझे घूर रहा था। तो गोया मैंने ख्वाब देखा था, मगर पहली बार मैंने कोई ख्वाब ऐसा देखा था कि जो कि जागती हुई आंखों से देखा था। मगर मैं इस वाक़े को ख्वाब तस्लीम करने को तैयार ही ना था। मैंने इधर उधर देखते हुए परेशान कुन लहजे में माधवन से सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? मुझे सांप ने काट लिया था। तू मेरे साथ है। सांप का जहर मेरी विद्या ने बेअसर कर दिया। माधवन का जवाब था, मैं जिंदा हूँ। ये बात मेरे लिए काफ़ी तसल्ली बख्श थी, लेकिन काफ़ी सवालात मेरे जहन में जवाब तलब थे। माधवन की शख्सियत अब मेरे लिए पुरस्रार होती जा रही थी। वो सांप कौन था और मुझ पर ही क्यों हमला किया? अभी जो मैंने देखा, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सच और झूठ की तमीज़ करना अब मुश्किल साबित होता जा रहा था। माधवन ने इस सांप को सतपाल कहकर क्यों पुकारा था? ऐसे बहुत से सवालात थे जो कि जहन में भट्टी बनकर पक रहे थे। वो सांप कौन था? वो सांप ही था जो कि तेरी जान लेने आया था। मगर क्यों? देवताओं ने तेरा इम्तिहान लिया था। माधवन का जवाब था। इम्तिहान की बात सुनकर मैं चौंक गया था। माधवन की बात सुनकर मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये झूठ बोल रहा है।
बात कुछ और है। मेरा दिमाग पकने लगा था। अचानक माधवन ने एक ऐसी बात बोली जिससे मैं शदीद गुस्से में आ गया। आज से 2 दिन के बाद पूर्णमासी की रात है। तेरे वचन के अनुसार तू मेरी चीज़ निकाल कर देगा। तेरा कोई काम मैं नहीं करूँगा जब तक तू मुझे सच नहीं बताता। मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। देख, तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने वचन से फिर सके, परंतु अगर मैं चाहूँ तो तू कुत्ते की बोली बोलने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लहजे की सफाकी महसूस करके मैं कांप गया। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मुझे सच नहीं बताएगा तब तक मैं तेरा काम नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर मैंने देखा कि इसकी छोटी छोटी आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स तेज हो गया। लगता है तुझको अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। इसका लहजा सर्द था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि इसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ पढ़कर फूंक मारी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि तपती हुई रेत मेरे मुंह पर दे मारी हो। मेरा पूरा चेहरा जलने लगा। एक आंच थी जो कि मेरे चेहरे को झुलसाए जा रही थी। फिर मेरी आंखों के सामने घुप अंधेरे नाचने लगे। अंधेरे छटे तो मैंने अपने आप को लय को दहक सहरा में पाया था। मेरे सर पर शदीद धूप थी, न साया न ही कोई नखलिस्तान, बस धूप ही धूप, रेत ही रेत। मैं इस रेत पर चलने लगा। चंद कदम ही चला हूँगा कि लड़खड़ा कर गिर पड़ा, क्योंकि वो रेत इतनी गर्म थी कि मेरा चलना दुश्वार था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। प्यास से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैं लड़खड़ा कर रेत पर गिर पड़ा। अचानक मैंने अपने सर पर सहराई परिंदों को मंडलाते हुए पाया। शायद इनको यकीन हो चुका था कि अब मुझको कौन बचाएगा। अब शायद मैं मरने ही वाला था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। मेरे जहन में सारे अच्छे पल एक एक करके किसी फिल्म की तरह चलने लगे। मौत शायद मुझसे चंद पलों के फासले पर थी। मेरा गला सूख चुका था। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। अचानक 2 नमकीन मोती मेरी आंखों से टपक कर मेरे गालों को गीला कर गए। अब मौत के बाद शायद नाइला के पास जा सकूंगा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, अगर इस तरह मरना है तो माधवन के साथ ही मरना अच्छा है। माधवन की बात मान लेने में ही मेरी ज़िंदगी बच सकती है। मेरे जहन में ये ख्याल आया ही था कि एक स्याह रंग की धुंध मेरे सामने फैलती ही चली गई। धुंध हटी तो मैंने अपने आप को माधवन के सामने पाया था। माधवन मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से घूर रहा था। इसकी नज़रों में तंज था। निकल गई सारी अकड़ फूंक। इसकी बात सुनकर मैं खामोश ही रहा था। मौत का भयानक तजुर्बा अभी जो मैंने किया था वो मेरे लिए काफ़ी था। मेरी खामोशी देखकर वो गंदा इंसान हंस पड़ा। मौत का खौफ बड़े बड़ों को तोड़ देता है। कल पूर्णमासी की रात है। कल तुम मेरे साथ चलोगे मेरी चीज़ निकालने। वो क्या चीज़ है? मैंने बेसाख्ता सवाल पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरने लगा। चंद लम्हों के बाद वो बोला, वो एक नक्शा, एक कदीम खजाने का नक्शा है। खजाना? मैं उछल पड़ा। मेरी बात सुनकर इसने ठंडी आह ली और बोला, वो इतना बड़ा खजाना है जिसका अगर एक हिस्सा भी मिल जाए तो तुम्हारी पुश्तें खाएंगी। खजाने का सुनकर मुंह में पानी भर आया था। वाकई अगर कोई ऐसा खजाना था तो मेरी ज़िंदगी बन सकती थी। अचानक मेरे जहन में एक सवाल आया जो फौरन ही मेरे लबों पर आ गया। एक बात बताओ, जब तेरे पास इतनी कुव्वतें हैं तो मेरी क्या ज़रूरत? मेरी बात सुनकर वो एकदम गड़बड़ा गया। इसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए। अगर मैं तेरा मोहताज ना होता तो तू मेरी मदद क्यों मांगता? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि माधवन मुझसे कुछ छुपा रहा है। बात खजाने के अलावा कुछ और भी है। लेकिन क्या ऐसी बात हो सकती है जो कि खजाने से भी बड़ी हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आसमान पर पूरा चांद था। मौसम बहुत ही खुशगवार था। मैं और माधवन इसी जगह पहुंच चुके थे। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थीं। हम दोनों पैदल चलते हुए अपनी मतलूबा मंजिल की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों अतराफ सुर्ख रंग के पहाड़ थे और इसकी ज़मीन भी सुर्ख रंग की थी। फ़ज़ा में अजीब सा धुआं फैला हुआ था जिसका रंग सफ़ेद था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस धुएं के आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था।
हम काफ़ी देर तक आगे बढ़ते ही रहे। सर्दी का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गए जहां एक बड़ी दलदल नजर आ रही थी। दलदल का सारा पानी सुर्ख था। इस गलीज और बदबूदार इंसान ने इस दलदल के पास पहुंचकर जेब से काली देवी का बुत निकाला। ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक्शन रीप्ले चल रहा हो। बुत निकालकर इसने दलदल के सामने रख दिया और फिर सजदे में गिर गया, और कुछ ही लम्हों के बाद इसने जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि ये वही खंजर था जिससे मैंने नायला का गला काटा था। इसने खंजर से अपनी उंगली से खून निकाला और बुत पर टपका दिया। खून के टपकते ही इसने मुझे इशारा किया और मैंने अपना हाथ इस दलदल के अंदर डाल दिया। कुछ ही लम्हों के बाद मेरे हाथ एक सख्त चीज़ से टकराए। मैं इस सख्त और ठोस चीज़ को बाहर ही निकाल रहा था कि मेरे कानों ने एक तेज़ किस्म की मर्दाना चीख की आवाज़ सुनी। अचानक मैंने दलदल के सुर्ख पानी पर बहुत से सांप तैरते देखे, जो तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे थे। जल्दी कर, समय निकल गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। माधवन की तशवीश भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इसके लहजे में तशवीश और अनदेखा सा खौफ नुमाया था। इस खौफ को महसूस करके मैं कांप गया। सांप बहुत तेज़ी से करीब आते जा रहे थे। फिर मैंने वो चीज़ बाहर निकाल ली। इस चीज़ के बाहर आते ही एक और चीख की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वो सांप गायब होते चले गए। वो एक मुनक्कश सा गोल्डन संदूक था, बहुत ही खूबसूरत और चमकदार था। हैरत अंगेज बात ये थी कि कीचड़ और पानी में पड़ा होने के बावजूद भी साफ और सुथरा था। माधवन किसी नदीदे बच्चे की तरह इसकी जानिब लपका था, और फिर इसने संदूक खोल लिया। संदूक के खुलते ही इसमें से दूधिया सी रोशनी निकली, जो कि आसमान की जानिब परवास कर गई। इस संदूक में किसी जानवर की तयशुदा खाल मौजूद है। माधवन ने आगे बढ़कर वो तयशुदा दस्तावेज खोल दी। ये एक नक्शा था, जो कि शायद किसी खजाने का मालूम होता था। नक्शे को देखकर इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे कि इसको अपनी मंजिल करीब नजर आने लगी हो। नक्शा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा तहरीरी मवाद पर मुश्तमिल था, जो कि किसी ना समझ आने वाली ज़बान में था। दूसरा हिस्सा तस्वीरों पर मुश्तमिल था, जिसमें इस वक्त की तहजीब को बयान करने की कोशिश की गई। कई जगह पर मुख्तलिफ हिंदू देवी देवता दिखाए गए थे। कहीं कोई बलि का देवता था, तो कोई खुशहाली का, कोई जंग, न जाने कौन कौन से देवता। इनमें काली देवी ज़्यादा नुमाया थी। दूसरी नुमाया चीज़ रोशन था, जिसकी रोशनी में बलि दी जा रही थी। तीसरे हिस्से में इस जगह जाने का नक्शा बयान किया गया था, जहां ये खजाना मौजूद था। अचानक मैंने माधवन के चेहरे के तासुरात को अजीब होते देखा, जैसे कि इसकी छोटी छोटी आंखों में खून भर आया हो, जैसे कि इन आंखों में किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया हो। अचानक वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। न जाने वो किससे मुखातिब था। देख सतपाल, तू हार गया तू। मेरी विजय हुई। तूने बहुत कोशिश की मुझे हराने की, मगर तू विजयी नहीं हुआ। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी मकरू आंखों में आंसू देखे, और वो फूट फूट कर रो दिया। इंसान की बदलती हुई कैफियत पहली बार मेरे सामने थी। थोड़ी देर पहले वो खुश था, और फिर गुस्से में था, और अब रो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों था। सतपाल का नाम दूसरी मर्तबा मैंने सुना था। मुझे अब माधवन की शख्सियत बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार मालूम होने लगी थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत सी परतें मौजूद हैं। अचानक वो मेरी तरफ देखकर बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों की तपस्या रंग लाई। नक्शा तुम खुद भी निकाल सकते थे। अगर निकाल सकता होता तो तुम्हारी ज़रूरत न थी। इस नक्शे को एक ख़ास अमल से सुध किया गया है। इसको सिर्फ वही निकाल सकता है जो चंद्र पुत्र हो, और वो तुम हो। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अचानक वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तेरे साथ मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। तुझे तेरा पूरा हिस्सा खजाने में से ज़रूर मिलेगा। इसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा। वैसे मुझे यकीन हो चुका था कि
کے بعد خزانے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ نقشے کو حاصل کیے 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن تک نہ مادھون مجھ سے ملنے آیا، نہ ہی اس نے کامنی کو بلایا۔ میں اکیلا ہی کمرے میں پڑا بور ہوتا رہتا۔ پھر ایک روز وہ میرے پاس آیا اور بولا، میں اس نقشے کو پڑھ چکا ہوں۔ بہت گہرا راز اس نقشے میں ہے، ایک ایسا راز جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ کیسا نقشہ، کیسا راز؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔